ਅੱਜ ਹੀ YouTube ਤੇ ਪਾਏਂਗੀ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਪਿਕਸ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਫਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ? ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਜੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ? ਫਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਚੇਸਡ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਪਰਚੇਸਡ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਪਰਚੇਸਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਚੇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਰਚੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਚੇਸਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਟ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਟ ਮਾਈਨਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਚੇਸਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਨ ਪਰਚੇਸਡ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਨਾਨ ਪਰਚੇਸ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਚੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਸ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ? ਪਰਚੇਸਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? 6। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ, ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਵੈल्यूएशन, ठीक है। दूसरा केड़ा हैगा है? एवरेज प्रॉफिट, तीसरा केड़ा? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। चौथा हैगा है कैपिटलाइजेशन मेथड, फिफ्थ हैगा एनुअटी मैथड, ते लास्ट हैगा है हिडन गुडविल। तो हुण असीं डिटेल दे विच पढ़ने सारे मैथड। पहला मैथड की कहंदा? आर्बिट्रेरी वैल्यूएशन। ਇਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ,
डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थर्ड पार्टी ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। हाँ, इन केस कि दो पार्टीज ਨੂੰ लगता है कि नहीं ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ देना चाहिए वा, दूसरी पार्टी ਨੂੰ लगता है कि नहीं ਇੰਨਾ होना चाहिए वा, तो दोनों की जो एक सलाह है ना, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कौन करवा देता है? एक थर्ड पार्टी करवा देती है। थर्ड पार्टी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? थर्ड पार्टी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ आर्बिट्रेटर। की कहते हैं? आर्बिट्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर की हैल्प नाल जो दो परसन का जो कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया जाता है, तो वो हैल्प नाल जो एक गुडविल असी डिसाइड करते हैं, उन्होंने असी कहते हैं गुडविल। ठीक है, तो मैथड किहड़ा होएगा? आर्बिट्रेरी वैल्यूएशन। सैकेंड मैथड किहड़ा? सैकेंड मैथड हैगा साडा एवरेज प्रॉफिट मैथड। इस मैथड के अकॉर्डिंग हुंदा की आ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सानू इत्थे 4 ਜਾਂ 5 साल का की हुंदा है? प्रॉफिट गिवन हुंदा है। ओके, 4-5 साल का प्रॉफिट जो भी गिवन होएगा असीं उन्होंने की कढ लैनी है? प्लस करके ते नंबर ऑफ ईयर्स के नाल डिवाइड करके उन्हां दा असीं की कढ लैनी है? एवरेज कढ लैनी है। ठीक है, एवरेज कढन तो बाद जिहड़ा प्रॉफिट आया उन्होंने असीं कहंदे एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कढना है एवरेज प्रॉफिट की हैल्प नाल असीं की करांगे? फॉर्मूला देखो की है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ओके, तो गुडविल की वैल्यूएशन इस सैकेंड मैथड के अकॉर्डिंग की फॉर्मूला की है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन ये राइज होंगे कि एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करना है, तो एवरेज प्रॉफिट किस तरह निकालीदा है? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, एंड गुडविल की वैल्यूएशन कितना कड्ढी दी है? ये कड्ढन तो बाद जिहड़ा साडे कोल एवरेज प्रॉफिट आया असीं उहनूं की कर देना? मल्टीप्लाई किहदे नाल कर देना? नंबर ऑफ ईयर परचेज के नाल। ओके, तो सैकेंड मैथड के अकॉर्डिंग गुडविल इस तरह सॉल्व की जाती है। ठीक है, हुण असीं न्यूमेरिकल करना है। देखो इलस्ट्रेशन 1 की कहता है? इलस्ट्रेशन 1 के अकॉर्डिंग कहता है कि देखो की लिखा कि ए बी एसोसीएट ऑन द फॉलोइंग प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। एक ए बी एसोसीएट ना दी कंपनी है, उन्हें की किया कि पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स अर्न किए। देखो 2012 का कितना दिता है? 15,000, 2013 दिता है 22,000, 14 दिता वा 14,000 रुपए, तो 2015 का प्रॉफिट है 19,000 रुपए। नीचे देखो की कहता है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज्ड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असीं वेख्या सी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कित्थे होएगा? ईयर परचेज सानूं क्वेश्चन च गिवन है, किन्ना दिता है? 3 साल सानूं दिता होया। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट असीं पहला कढ लांगे, जिन्ना एवरेज प्रॉफिट आएगा असीं उहनूं की कर देना वा? 3 साल दे ईयर परचेज के नाल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखो कितना सॉल्व करना है। पहला असीं कढांगे एवरेज प्रॉफिट। दो 2012 का कितना दिता है? 15,000 प्लस 22,000, 14,000 प्लस 19,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ईयर्स है? 1 2 3 ते 4। ठीक है, सब दा टोटल कर दो तो कितना आ गया? 70,000 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? 17,500 रुपए। 17,500 की आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। मेन की सी? मेन उन्हें की पूछा सी? वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया साढ़े को? 17,500 मल्टीप्लाई बाय देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितों मिलेगा? क्वेश्चन चो देखो, क्वेश्चन च लिखा ना उन्हें यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 3 साल 3 ईयर्स दिते, 3 साल मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 52,500 रुपए। लो जी, साडा सम हो गया एवरेज प्रॉफिट मैथड के नाल। ठीक है, सैकेंड देखो, सैकेंड भी इसी वे नाल कीता उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विच इज टू बी टेकन एट
3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years। ਐਤਕੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो देखो ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾ 20,000 ਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो देखो ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸਟ 5 years ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। अच्छा पहले साल का कितना दिता है 50,000 प्लस 40,000 दूसरे साल का, तीसरे साल का कितना 20,000 है ना। पर देखो ब्रैकेट च की लिखा है लॉस लिखा है, तो इनू तुसी ब्रैकेट च रहन देना, ओके। फिर उस तो बाद 30,000 का प्रॉफिट, फिर पंजवें साल का 60,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पहली इलस्ट्रेशन च किन्ने साल सी 1 2 3 4, ऐतकी किन्ने है 1 2 3 4 ते 5, ठीक है। हाँ करो सब प्लस माइनस कितना आ रहा है 5 4 9 9 2 9 3 12 12 6 18, 18 में 2 गए 16, मतलब 1,60,000 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया 32,000 आ गया, ठीक है। 32,000 की आया साढ़े कोल एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट कड्ढन तो बाद सानू हुण की चाहिए गुडविल दी वैल्यू, फॉर्मूला वही रहेगा साढ़े कोल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना आया सेकंड के अकॉर्डिंग 32 इंटू 3 कितना आ गया 96,000। लो ये नाल ये साड़ी दूसरी इलस्ट्रेशन भी सॉल्व है। थर्ड इलस्ट्रेशन देखो की कह रहा वा, थर्ड इलस्ट्रेशन दे विच उन्हें क्या है कि XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग लॉसेस कितना है 3:2:1। ऐतकी इन्होंने रेशो दी है, ओके। वो भी 3 पार्टनर्स की दी है, पार्टनर किन्ने ने 3 केड़े X Y एंड Z, तो रेशो किन्नी दी है 3:2:1। दे डिसाइडेड टू टेक मिस्टर ए, ऐतकी उन्होंने सोचा ये फैसला लिया कि ऐतकी वो मिस्टर ए नू लैणगे कदों तो 1 अप्रैल 2016 तो, ते कहंदा कि ये 1/7 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ये फैसला लिया कि ऐतके असीं नवे पार्टनर नू लैके आवांगे, शर्त ये रखी है कि फ्यूचर च जिन्ना प्रॉफिट होएगा ओहदा उन्होंने कितना हिस्सा उन्होंने देना है 1/7वां हिस्सा देना है। फॉर दिस परपस कि उन्होंने पूछा है कि जी गुडविल है वो कितनी होनी चाहिए ट्वाइस एट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 और 4 विच एवर इज हायर, ठीक है। ये थोड़ा जिहा अलग हैगा वा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान नाल देखो तुहानूं समझ आ जानी है। सब तो पहला देखो उन्होंने की दिता है कि तुहानूं अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 साल का प्रॉफिट दिता है ना। 13 दिता वा 59,080, 2014 दिता 43,000 है, तो 2015 का क्या दिता 42,000, फिर 67,200 दिता है, ठीक है। नीचे की कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असं काम करना। क्वेश्चन के देखो लास्ट लाइन उन्होंने की किया कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 विच एवर इज हायर, पिछले 3 या पिछले 4। पहला असीं गल करते हैं बेस्ड ऑन द 3 ईयर्स, तीन साल के अकॉर्डिंग 3 साल का प्रॉफिट लो 13 14 ते 15 सॉरी 16 15 ते 14 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 16 का कितना है 16 का हैगा वा 67,200, ठीक है। तो फिर उस तो बाद 15 का अच्छा 15 का कितना है 42,420, तो 14 का कितना है 43,680, प्लस कर दो तो कितना आ गया 1,53,300 आ गया। एक ये टोटल प्रॉफिट है, इनू डिवाइड कर दो 3 साल के नाल, ठीक है। तो कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 51,100, ओके। हुण इत्थे असीं करांगे दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन 4 ईयर्स। 40 साल का लै लेना ऐतकी असीं सब तो पहला लवांगे 16 का, फिर लवांगे असीं 15 का, फिर लवांगे असीं 14 का, तो फिर असीं लवांगे 2013 का। कितना रहा सी 67,200, 42,420, 43,680, फिर 59,080, ठीक है। प्लस कर दो तो कितना आ गया 212,380, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट नू डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स 4 साल के नाल, साढ़े कोल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 53,095 रुपए। कंडीशन जो क्वेश्चन की कह सके विच एवर इज हायर, दोनों में ज़्यादा केड़ा है ए वाला ज़्यादा है ना,
ठीक है। तो हुण असीं गुडविल की वैल्यूएशन करांगे इहदे बेसिस ते। इहनूं असीं मल्टीप्लाई कर देना वा 2 दे नाल। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिता ना क्वेश्चन दे विच ट्वाइस का मतलब हुंदा डबल, इसलिए असीं 2 दे नाल की कीता मल्टीप्लाई कीता। ठीक है, मल्टीप्लाई करके साडे कोल इत्थे फिर कितना आ गया, एक 1,06,190 गुडविल की वैल्यूएशन आ गई। ठीक है, ये नाल ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उस तो बाद नैक्सट देखो की कहता है। नैक्सट कह रहा है कि इलस्ट्रेशन फॉर द अकॉर्डिंग के गुडविल ऑफ अ फर्म इज एस्टिमेटेड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year विच आर एस फॉलो। अच्छा देखो बॉक्स दिता, बॉक्स के दिता उन्होंने एक ईयर जिस लिखा प्रॉफिट कितना उन्होंने किया, फिर 2012 दिता वा 40,000, 2013 का कितना दिता है, कहते कि 25% हायर दैन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अच्छा देखो तो ट्रांसलेट करके देखो तो की कहता है कि 25% पिछले साल जितना प्रॉफिट है वो 25% की हायर है, हायर मतलब ज़्यादा है। ओके तो देखो इन्हें कितना सॉल्व करना है असी, 2012 का कितना प्रॉफिट है, 2012 दिता है 40,000। ठीक है, तो 2013 की कह रहा सी 25% हायर दैन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का हैगा सी 40,000, ਉਹਦਾ कितना उन्हें किया 20% ज़्यादा। असी 25% की कर देना है विच प्लस कर देना है, क्यों क्योंकि उन्हें हायर किया सी। ਉਹਦਾ 25% कड्डो पहला, 25% कड्ड के तो कितना आ जाएगा 50,000 आ जाना है। ठीक है, उसी तरह ही 2014 का देखो कहते कि 40% हायर दैन प्रीवियस ईयर। अच्छा 2014 तो प्रीवियस ईयर केड़ा है 2013 है ना, तो 13 का कितना आ रहा है 50,000। ओके तो 50,000 का जिन्ना आएगा ਉਹਦਾ करो तुसी 40% कड्ड के विच कर देना तुसी ਉਹਦਾ प्लस, तो कितना बनता पिया 70,000। ओके हुण देखो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ किया है कि 80% ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट है। ये सिंपल उन्हें क्या है 80% ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मतलब 70,000 का पूरा का पूरा 80% कट देना। तो कितना आ रहा सी भाई 56,000 आ रहा सी। लो जी 13 का कितना प्रॉफिट 50,000, 2014 का कितना प्रॉफिट आ रहा है 70,000, 15 का कितना आ रहा है 56,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया 40 प्लस 50 प्लस 70 ते प्लस 56 टोटल आ गया 2,16,000 आ गया। सानू हुण की चाहिए, सानू चाहिए एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना सी 2,16,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4। ठीक है तो कितना आ गया 54,000। ओके हुण सानू की चाहिए गुडविल की वैल्यूएशन। एवरेज प्रॉफिट जिन्ना आया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट सी 54,000 मल्टीप्लाई बाय 3। हुण 3 कित्थे लिखिया सी, लिखिया ना सब तो उपर लाइन च द गुडविल ऑफ अ फर्म इज एस्टिमेटेड एट 3 years परचेज। तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया भाई 1,62,000 आ गया। ठीक है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਥੈਂਕਸ।